Good morning, students. Today we are starting chapter 12, present tense, simple, continuous, perfect and perfect continuous. Tense is used to denote the time of an action. Tense से वो action का time show करता है. The three main tense forms are present tense, past tense and future tense. ये three main tense के forms हैं. Each of the tenses mentioned above has four forms. हर एक tense के four forms है: simple, continuous, perfect and perfect continuous. We use the simple present tense. Now simple present, simple past and simple future. Where we use them, ये कहाँ use होते हैं? See, simple present is used to indicate an action that takes place now. ऐसा action जो अभी हो रहा है उसको show करने के लिए simple present tense is used. Simple past tense to denote an action that took place earlier, जो पहले हो चुकी थी ऐसी action show करने के लिए. The simple future tense to indicate an action that is going to take place later. जो बाद में होने वाली है वो action है simple future में हम लिखते हैं. Now look at the table given here that shows the different forms of verb play in all the tenses mentioned above. तो जितने भी tenses दिए हैं ऊपर उन सब के forms अलग अलग tenses में how we write them is given. See here, present tense is given, उसका positive, negative and interrogative दिया है. Then past and future are given. Simple, continuous and perfect, perfect continuous, all the four forms are given. कि कैसे verb change होता है. See, play is the verb, I play. Negative में I do not play. Interrogative, do I play. Past tense के लिए we will use the past form, I played. Future में I will play. Okay, now continuous है तो I am playing, negative I am not playing, interrogative am I playing. Past tense में am का क्या हो जाता है? was या were. I was playing. Future में I will be playing. Perfect में I have played, have plus past participle form. I have not played, have I played. पास्ट टेंस में हैव हैज़ का हैड होता है, सो हैड प्लेड, आई हैड प्लेड. फ्यूचर में आई विल हैव प्लेड. नाउ परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बिन प्लेइंग, तो प्रेजेंट में हैव बिन या हैज़ बिन प्लस आईएनजी फॉर्म यूज होगा, सो आई हैव बिन प्लेइंग. नेगेटिव में आई हैव नॉट बिन प्लेइंग. इंट्रोगेटिव, हैव आई बिन प्लेइंग, पास्ट फॉर्म आई हैड बिन प्लेइंग, हैव बिन का क्या हुआ? हैड बिन. And future में I will have been playing. Now in exercise A, what we are supposed to do? We have to read the sentences, underline the verbs, and we have to write कि कौन सा present tense form है. State of the tense, state the tense of each underlined verb. हर एक verb जो underline करते हो उसका tense mention करना है. See the first one. I am looking at the landscape. मैं landscape के सामने देख रहा हूँ, तो am looking कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सेकेंड वन, द ओल्ड मैन इज स्नोरिंग लाउडली. ओल्ड मैन जोर से खराटे ले रहा है. इज स्नोरिंग वर्ब है एंड इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बिकॉज एम इज आर, इज यूज हुआ है प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब. थर्ड, ही डज योगा रेगुलरली. डज इज वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. फोर्थ, शी इज ड्रीमिंग ऑफ ट्रैवलिंग इन स्पेस. वो स्पेस में ट्रैवल करने का ड्रीम देख रही हैं, तो इज ड्रीमिंग इज वर्ब, इट इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. फिफ्थ, द लेबरर्स आर टॉयलिंग हार्ड. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है बिकॉज आर टॉयलिंग, ये एम इज आर प्लस आई एन जी फॉर्म. लेबरर्स बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं. सिक्स, द टॉर्टोइज इज स्लीपिंग इन इट्स शेल. टॉर्टोइज अपने शेल में सो रहा है. इज स्लीपिंग वर्ब है एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म. द सिटी वेयर्स अ डेजर्टेड लुक, यानी सिटी है वो खाली खाली जैसा है. वेयर्स है, इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. सीता इज लर्निंग पैराग्लाइडिंग दीज डेज. आजकल सीता पैराग्लाइडिंग सीख रही है. इज लर्निंग इज वर्ब एंड इट इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. द मैकेनिक हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू रिपेयर द बाइक बट टू नो अवेल. मैकेनिक बहुत ट्राई कर रहा है अपना बाइक रिपेयर करने की, बट उसको कोई रिजल्ट
नहीं मिला. Has tried. तो this is present perfect tense because has use हुआ है and past participle is there. 10th one, the bell rings after every period. हर period के बाद bell ring होता है, तो rings is verb and it is in simple present tense. Now features are given. Verb in a sentence indicates the tense. Sentence में verb हमें बताता है कि sentence है वो कौन से tense में है, time of action. The verb forms change according to the time of action. Verb forms है वो जो टाइम ऑफ एक्शन है उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्म्स है वो चेंज करते हैं. दे कैन बी द मेन वर्ब फॉर्म्स बेस पार्टिकल्स विच जनरली इंडिकेट एक्शन. तो पार्टिसिपल फॉर्म्स हैं जैसे आईएनजी फॉर्म्स है या बेस फॉर्म्स है वो हमें शो करते हैं एक्शन कब हो रही हैं, या ऑक्सिलरी वर्ब्स है दे कैन ऑल्सो शो द एक्शंस. मेन वर्ब्स आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्शन वर्ड्स लाइक. मेन वर्ब्स किसको कहते हैं, जैसे ईट, प्ले, स्लिप, रीड. ये सब जिसके मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है, दे आर ऑल मेन वर्ब्स. मेन वर्ब को बेस वर्ब भी कहते हैं, रूट वर्ब कहते हैं, ओरिजिनल वर्ब कहते हैं. सो ये जो है दे आर मेन वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स एंड आर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी और हैव. ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है, बी के वर्ब्स. सी बी के वर्ब्स कौन से हैं, द वर्ब फॉर्म्स ऑफ बी कैन बी यूज्ड एज इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी. और हैव है उसके भी वर्ब फॉर्म्स है विच कैन बी यूज्ड एज हैज, हैव, हैड, विल हैव एंड शैल हैव. ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स है. ऑल दिस वर्ब्स हेल्प इंडिकेट द टेंस. ये टेंस शो करने में हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल, गगन इज रीडिंग अ नॉवेल. गगन क्या कर रहा है, नॉवेल रीड कर रहा है. इज ऑक्सिलरी वर्ब, रीडिंग इज मेन वर्ब. द वर्ब इज रीडिंग इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सेंटेंसेस में ऑल्सो हैव मल्टीपल ऑक्सिलरी वर्ब्स. कोई सेंटेंसेस है उनमें वी हैव मोर ऑक्सिलरी वर्ब्स. ओके, जैसे द सेंटेंसेस गिवन कि द बेबी हैज बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून. बेबी है वो आफ्टरनून से प्ले कर रहा है. नाउ इन दिस सेंटेंस हैज एंड बीन बोथ आर ऑक्सिलरी वर्ब्स. प्लेइंग है दैट इज मेन वर्ब. एंड द अबव सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Be is often used as an ordinary verb. It is also used to form other tenses. Be है ordinary verb की तरह भी हम use कर सकते हैं और उससे tenses form होते हैं. Examples, she is tired. तो is है it's a form of be verb and has been used as an ordinary verb. She is playing. Here is playing has been used to form another tense. देखो शी इज टायर्ड था, राइट. तो ये ऑर्डिनरी वर्ब हो गया. बट इज प्लेइंग तो यहाँ पे इट इज फॉर्मिंग विच टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. व्हेन बी इज यूज्ड टू फॉर्म अदर टेंसेस इट इज कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब. जब बी को हम दूसरे टेंस फॉर्म करने के लिए यूज करेंगे तो वी विल कॉल इट ऑक्सिलरी वर्ब. रोहन सेड आई एम टायर्ड. तो दिस इज ऑर्डिनरी वर्ब. रोहन सेड आई एम रीडिंग अ बुक. तो इट इज ऑक्सिलरी वर्ब. समटाइम्स वी यूज शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ बी. जैसे देखो आई एम है ना, तो उसका शॉर्ट फॉर्म इज गिवन आई एम अर्ली. मैं आज जल्दी हूँ मीन्स लेट नहीं हूँ. यू आर यूजुअली पंक्चुअल. आप यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम पंक्चुअल होते हो, प्रॉपर होते हो अपने वर्क में. Now read the table given below to understand use of various forms of be in the present tense. Be के जो verbs है उसके different forms are given. I am, we are, you are, she is, he is, it is, they are. Negative में I am not, we are not, you are not, she is not, he is not, it is not, they are not. For interrogative, auxiliary verbs पहले and then subject. Am I, are we, are you, is she, is he, is it, are they. Now short forms are also used very often. है ना, ये सब short forms are given. तो जैसे you are not का you aren't, he is not का he
isn't. Are you not, aren't you, am I not, ain't I. The short form of am I not is different. Aren't I is also used. तो am I not का या तो short form ain't I और aren't I. The verb have may be used as an ordinary verb or an auxiliary verb to form other tenses. तो जैसे आगे बी के फॉर्म्स वी हैड सीन कि जिसको ऑर्डिनरी वर्ब की तरह भी और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी यूज़ किया जा सकता है. सेम वे हैव को भी वी कैन यूज एज ऑर्डिनरी वर्ब और एन ऑक्सिलरी वर्ब. इट एक्सप्रेसेस पोजेशन व्हेन इट इज़ यूज्ड एज एन ऑर्डिनरी वर्ब. जब हैव का यूज़ ऑर्डिनरी वर्ब की तरह करेंगे तो इट विल शो अस पोजेशन. रोशनी हैज़ अ न्यू मोबाइल फ़ोन. रोशनी के पास नया मोबाइल फ़ोन है तो इट इज़ पोजेशन. Samarth has a golf set, so that is also possession. The verb have is also used to make tenses. Neeta has completed the work. तो यहाँ पे has completed is present perfect tense. Anupam has gone out. Here it is also present perfect tense. तो यहाँ पे has है वो tense बनाने के लिए यूज हुए हैं. Look at the table given here to understand the various forms of verb have in the present tense. Now table में हमें different forms show किए हैं verb have के. See now positive में I have, we have, you have, she, he and it के साथ has और बाकी सब के साथ have use होता है they have. Negative में have के और has के बाद we will put not. I have not, we have not, you have not, she has not, he has not, it has not and they have not. Interrogative बनाना है तो what we are going to do is has या have है वो पहले put होंगे then subject. Have I, have we, have you, has she, has he, has it, have they. When we use have in interrogative sentences we can write have है उसको हम टू वेज में उसका यूज़ करके वी कैन फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. डू यू हैव एनी चॉकलेट्स. तो हियर डू इज़ यूज्ड तो सब्जेक्ट एंड देन हैव. अगर हैव पहले पुट करते हैं तो हैव सब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स हैव यू एनी चॉकलेट्स. ओके नाउ मूविंग फर्दर एक्सरसाइज बी. Use the appropriate form of be and have in the following sentences. Now be है या have है कौन सा फॉर्म यूज़ करना है. इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन ब्रैकेट. हमें उसका करेक्ट फॉर्म लिखना है. they. सो they के साथ आर आएगा. they are planning to watch the match on television. वो लोग टेलीविजन पे मैच देखने का प्लान कर रहे हैं. I am going to the nearby park. मैं पास के पार्क में जा रहा हूँ या जा रही. थर्ड रागिनी. हैव का फॉर्म यूज़ करना है. रागिनी मीन्स शी सिंगुलर है तो वी विल यूज हैज़. रागिनी हैज़ नॉट ब्रोकन दिस वेज. फोर्थ सुशील इज एन इंटेलिजेंट बॉय. 5 दे आर क्वेश्चनिंग हिम. वो लोग उसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं. 6 दे आर इन अ हरी. वो लोग जल्दी में हैं. 7 You are a talented artist. आप एक talented artist हो. 8 You have contacted your friend it seems. ऐसा लग रहा है आपने अपने फ्रेंड का कांटेक्ट किया है. 9 She is going to Shimla for a few weeks. वो few weeks के लिए शिमला जा रहे हैं. 10 I have just made a cup of coffee. मैंने अभी cup of coffee बनाया है. I है that's why we will use have. Now, present tense. Look at the table given below to understand uses of the present tense. तो present tense है उसके uses are shown simple present tense. किस लिए यूज़ होता है? To express a habitual action. Habit की वजह से जो actions होती हैं उन्हें express करने के लिए. He goes to office by car. वो everyday car से office जाता है. To express scientific facts and general truths. साइंटिफिक फैक्ट और जनरल ट्रूथ शो करने के लिए द सन गिव्स अस लाइट एंड एनर्जी. सन हमें लाइट एंड एनर्जी देता है. टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड प्रोग्राम और टाइम टेबल. ऐसा फ्यूचर इवेंट एक्सप्रेस करने के लिए जो फिक्स्ड प्रोग्राम या टाइम टेबल उसका बन चुका है.
एग्जाम्पल, द डेलीगेशन लीव्स फॉर जेनेवा ऑन संडे। जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जेनेवा प्लेस पे संडे जा रहे हैं। Now present continuous tense is used to express an action going on at the time of speaking. बोल रहे हैं तब जो एक्शन हो रही है उसको एक्सप्रेस करने के लिए she is playing. To express a temporary action which may not be actually happening at the time of speaking. कोई temporary action है जो बोलने के टाइम पे नहीं हो रही है, जैसे she is learning to swim at the club these days. आजकल क्लब में वो स्विमिंग सीख रहे हैं, बोल रहे तब she is not swimming, but it's a temporary action. To indicate an action that is expected to take place in the near future. Near future में कोई action होगी ऐसा expect किया जा रहा है, that we write in present continuous form. The ladies are going for a movie this Sunday. Ladies है वो इस Sunday movie देखने जाने वाले हैं. Now present perfect tense is used to indicate an action that has just been completed. ऐसी एक्शन जो अभी कंप्लीट हुई है उसको शो करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एग्जाम्पल, समर हैज़ गॉन आउट. समर बाहर गया है. टू डिनोट एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग. ऐसी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी अभी भी चल रही है उसके लिए ही हैज़ बीन ऑन लीव सिंस लास्ट वीक. वो लास्ट वीक से लीव पे है. To show past events, the time for which is not mentioned, its effect can be felt at the time of speaking. ऐसे past events जिसका कोई टाइम मेंशन नहीं किया है बट उसकी इफेक्ट हम अभी भी फील कर सकते हैं when we are speaking. शीना has completed the engineering course. शीना ने अपना इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया है. Forms of simple present tense. Here is a table which shows different simple present tense forms of the verb sing. Sing word है जो verb है उसके different forms are shown in simple present tense. Positive, I sing. Negative, I do not sing. तो negative form करने के लिए we need to add do या does. And for interrogative, do या does पहले, then subject and then जो ओरिजिनल वर्ब है या बेस वर्ब है दैट विल कम. डू आई सिंग, वी सिंग. वी डू नॉट सिंग, डू वी सिंग. यू सिंग, यू डू नॉट सिंग, डू यू सिंग. यू ऑल सिंग, यू ऑल डू नॉट सिंग, डू यू ऑल सिंग. नाउ सी, ही शी इट आया है तो वी विल यूज एज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. He, she, it sings. He sings, she sings, it sings. He, she, it does not sing means he does not sing, she does not sing, it does not sing. And does he, she, it sing means does he sing, does she sing, does it sing. So he, she, it है, with that we are going to use does. बाकी सबके साथ we will use do. They sing. थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स फाइन. दे डू नॉट सिंग, डू दे सिंग. नॉट. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इन प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स एज दे रिफर टू परमानेंट ट्रूथ्स. जो मुहावरे एंड कहावतें हैं व्हेन वी से देम तब हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस. अ स्टीच इन टाइम सेव्स 9. अगर टाइम में अगर एक स्टीच जो निकला है वो कर ले तो आगे जाके 9 स्टिचेस है वो नहीं लेने पड़ेंगे. मीन्स जो वर्क जब करना होता है तब कर ले तो आगे जाके बहुत सारा वर्क एक साथ नहीं करना पड़ता है. बी, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. जो रोलिंग स्टोन है, स्टोन जब एक प्लेस पे पड़ा रहता है तो उसके आसपास छोटे छोटे फ्लावर्स ग्रो हो जाते हैं. बट जो रोलिंग स्टोन है कंटिन्यू रोल करता है उसके आसपास कोई मॉस ग्रो नहीं होता है. Now the simple present tense is used to express natural qualities and professional activities. Example, sugar tastes sweet. तो ये natural quality है शुगर की कि वो हमेशा sweet taste करती है, तो इनको भी हमें simple present tense में लिखना है. B, a doctor treats patients. Professional activity हो गई कि डॉक्टर की एक्टिविटी क्या है, वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं. Now in simple present tense we generally use the root form of the verb.
But with he, she, it and other singular subjects in third person we add s or es to the root form. Simple present tense है, उसमें we use root form subject के साथ. But अगर third person singular है जैसे he, she, it, तो we have to add s or es. He locks the entrance gate every night. वो हर रोज रात को जो एंट्रेंस गेट है उसको लॉक करता है. तो देखो ही है इसलिए लॉक्स यूज हुआ है. The negative sentence is formed by writing subject, do does के बाद we will add not. तो subject plus do does plus not plus base form of verb means original verb. Example, the boy does not read novels. Boy subject, does, not, base verb या original verb read and novels. The interrogative sentence is formed by writing do does plus subject plus base form of verb. Interrogative बनाना है तो we will add do or does first and then we will write subject and then the original verb. Does the boy read novels? Boy novels read करता है तो see does is written first then the subject boy then read है is the base form of verb. So today we are keeping till here only. And in next lecture we will continue. Thank you.